Question number 181. ओके जी 181 को देख के शाबाश। A 42-year-old woman and her daughter started vomiting 2 hours after attending a wedding party. There was generalized abdominal tenderness. Both were tachycardic and mildly low blood pressure. What is the most likely pathogen? Salmonella typhi. Answer is C. ठीक है। 182. A 40-year-old lady present with jaundice. She had severe pain in epigastrium, retching and vomiting 2 days ago. What is the most appropriate investigation? Jaundice, she had pain in epigastrium. LFT, liver function test. Answer is B. Next, a 52-year-old man with portal hypertension and ascites edema of abdomen को कहते हैं, present with abdominal pain and fever. Ascitic fluid microscopy reveal gram-negative rod. What is the most likely organism? E. coli. Answer is A. ठीक है, E. coli. A 22-year-old female after meal become drowsy and confused. She is vomit and hyperventilating but not cyanosed. She has history of losing 5 kg weight over last 2 months. Her breath smell of fruits. ठीक है, what is the most appropriate blood sugar level? Answer is B. वजह यह है कि it is a DKA patient, diabetic keto acidosis. और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पेशेंट में कंफ्यूजन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब ब्रेन को ब्लड शुगर चेक करते हैं, सबसे पहले शुगर चेक करते हैं, फिर एबीजीज चेक करते हैं। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 185। A 50-year-old male is brought to the hospital with a history of loss of consciousness and tongue biting a short while ago. This has happened more than once. On examination, he was conscious with no gross neurological deficit. He gives past history of urinary incontinence during sleep once in a while. What is the most likely diagnosis? हाँ जी, answer is a 50-year-old male is brought to the hospital with a history of loss of consciousness and tongue biting short while ago. This has happened more than once. ये epilepsy है, that is epilepsy. Repeated attacks of seizure, that is epilepsy. Clear है? Answer is B. A 44-year-old female complained to her daughter of having light bleeding between her periods. Which of the following in the patient history would put high risk of cervical cancer? हाँ जी, cervical cancer के लिए a 44-year-old female complained to her daughter of her light bleeding between periods. Which of the following in this patient history would put her high risk of cervical cancer? सर्वाइकल कैंसर के काजेस तो देखें, मल्टीपेरिटी भी है, स्मोकिंग भी है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर एचपीवी भी कराती है। यहाँ पे स्मोकिंग याद रखें, तो स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है। ठीक है, कैंसर के लिए सी। A 28-year-old woman at 35-week pregnancy with poorly controlled diabetes complain of reduced fetal movement since one day and admitted to the hospital. On examination, her BP is 160/100 mmHg. The immediate obstetric investigation includes, that is called OGTT, oral glucose tolerance test. आंसर है ये poorly controlled diabetic है। ठीक है, तो OGTT, the best investigation in diabetic patient pregnancy, OGTT, oral glucose tolerance test। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, a 33-year-old multi-gravida with a history of 6-week amenorrhea, severe pain in the lower abdomen associated with syncope attack, brown vaginal discharge, attend your clinic. That is a 33-year-old multi-gravida with a history of 6 weeks amenorrhea, severe abdominal pain. ये ectopic pregnancy है। आंसर इज ए, ectopic pregnancy.
नेक्स्ट, मतलब मोर देन वंस वो प्रेग्नेंट हो चुकी है पहले से। 193, a 30-year-old G4P3, हाँ एक मिनट, हाँ जी। 189, 18-year-old अनमेरिड कॉलेज स्टूडेंट प्रेजेंट इन, अगैन ये तो एनसेड है, आंसर इज बी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर बेस्ट ड्रग फॉर पेन किलर इज एनसेड। A 38-year-old para 4+0 tubal ligation 1 year back present with irregular bleed per vagina since 6 months. Pelvic exam and pap smear are normal. Papillary biopsy reveal adenomatous hyperplasia with atypia. The most appropriate treatment will be, answer is dilation and curettage. ठीक नहीं, सॉरी, हाइपरप्लेजिया, एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया ये यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। तो इस पेशेंट में हम हेस्टेरोस्कोपी करते हैं, मतलब ये है कि हम यूट्रस को देखते हैं, अगर उसके अंदर उसकी साइज ज़्यादा है, क्योंकि ये प्री कैंसर स्टेज है, अगर ये कैंसरस होता तो फिर इसको रिमूवल कर देते, हेस्टेरेक्टोमी। इसमें हम पहले हेस्टेरोस्कोपी करते हैं ताकि पता चले कि इसकी जो एबनॉर्मल सेल नंबर है वो कितनी बढ़ गई है। क्लियर है? ओके, सी पैरा 4+ का मतलब ये है ट्यूबल लाइगेशन, ये सर्जरी है। ट्यूबल मीन के पिलोपियन ट्यूब इसकी लाइगेट हो चुकी है, मतलब पैरा 4 मीन के ये पैरा मतलब वो फीमेल्स होती है जिस तरह मल्टी ग्रेविडा होता है, पेरी पेरिटी, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इसके मतलब ज्यादा है, 4 चिल्ड्रन शो करता है, ठीक है ना। पेरिटी मीन नंबर्स ऑफ टाइम प्रेगनेंसी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट, 39-year-old नलीपेरस। व्हाट इज नलीपेरस? जो कभी प्रेग्नेंट नहीं, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर चुकी है। नलीपेरस लेडी हैज मेनोरेजिया, सीवियर डिस्मेनोरिया, डिस्पेरूनिया का मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन या पर वेजाइनल, पीवी स्टैंड फॉर पर वेजाइनल, द यूट्रस इज 8 वीक, फॉर्म एंड यूनिफॉर्मली इनलार्ज। ये तो हमने किया था ना। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, आंसर इज यूट्रस किस में यूनिफॉर्मली इनलार्ज होता है? दैट इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस। इसमें जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो किधर चली जाती है? मायोमेट्रियम में। तो उसमें मेनोरेजिया, डिस्पेनोरिया एंड देयर इज यूनिफॉर्म इनलार्ज यूट्रस। इसका आंसर ए, ठीक है। ये हमने डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में पढ़ा था, एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस। A 40-year-old woman has been successfully treated for breast cancer and required contraception. The most appropriate contraception, ये IUD है, आंसर इज IUD, कॉपर टी, ठीक है। नेक्स्ट, A 30-year-old G4, G का मतलब ग्रेविडिटी, कि 4 टाइम प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन इसकी पेरिटी कितने बच्चे हैं? 3। G4P3 present with the history of amenorrhea for 16 weeks. She has lower abdominal pain and bleeding per vagina since 1 day. Ultrasound shows no cardiac activity. देखे, the beta HCG is high, that is molar pregnancy. Answer is D. यहाँ भी हमने पढ़ा था, मोलर प्रेगनेंसी के अंदर हमेशा बीटा HCG ज्यादा होगी लेकिन बच्चे की एक्टिविटी मौजूद नहीं होगी, दैट इज मोलर प्रेगनेंसी। इसमें ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू बढ़ जाते हैं और बीटा HCG रिलीज बढ़ जाती है। A 28-year-old प्रेमी ग्रेविडा का मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, प्रेमी मीन प्राइमरीली फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी इज कॉल्ड प्रेमी ग्रेविडा। हर एंटीनेटल विजिट एट 20 वीक प्रेगनेंसी, पेशेंट कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट एंड यूरिनेशन। On examination, her height of fundus is at 30 weeks. The most appropriate investigation will be, इसका मतलब क्या है कि इसका जो 20 वीक है, 20 वीक, लेकिन असल में उसके जो फंडल हाइट है वो 30 वीक है, तो बच्चे का साइज ज्यादा होगा कि नहीं? मैक्रोसोमिक बेबीज डायबिटिक पेशेंट के अंदर होती है, आंसर इज सी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको OGTT कहते हैं। तो OGTT इज द बेस्ट वन प्रेगनेंसी के अंदर, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है जी।
नहीं, वो तो पास्ट हमें बताते, 3 से 4 मंथ की ग्लूकोज स्टेटस बताते हैं, हमें तो प्रेगनेंसी में चाहिए कि इसकी डायबिटिक कंट्रोल क्या है, तो उसमें OGTT करा जाता है। और यहाँ पे यूट्रस 30 वीक का दिख रहा है, और वैसे प्रेगनेंसी का टाइम कितना है, 20 वीक है। इसको कहते हैं लार्ज फॉर डेट यूट्रस। यूट्रस जो है वो अकॉर्डिंग टू द डेट क्या है, वो लार्ज है साइज में। तो ये फीमेल डायबिटिक है, और इसकी जो बच्चा है वो मैक्रोसोमिक है, क्योंकि इंसुलिन जो है, इंसुलिन बच्चे के अंदर एनाबोलिक हार्मोन है, और वो बच्चे की साइज को इंक्रीज कर देती है। क्लियर है? हाँ, रैंडम ब्लड शुगर, आरबीएस भी कर सकते हैं, कराने पे तो बिल्कुल फास्टिंग भी करा सकते हैं आरबीएस, लेकिन बेस्ट टेस्ट जो हमें ज्यादा आइडिया दे सकता है वो 2 हावरली ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, कराने पे एफबीएस आरबीएस दोनों करा सकते हैं। A 35-year-old P6 at term, सारे गए के क्वेश्चन इधर पड़े हैं। क्लियर है कि नहीं? A 35-year-old P6 at term came in labor. Vaginal examination revealed cord prolapse. The first step you will take confirm fetal heart rate, reassure the patient, give her enema, empty her bladder. हाँ जी, what is this? Examination revealed cord prolapse. umbilical cord की बात कर रहे हैं। umbilical cord prolapse है, the first step you would take dash. Answer is, हाँ जी, क्या करना है, रीएश्योर द पेशेंट। बी, रीएश्योर कराते हैं कि नो प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे की कार्ड तो क्लेम है वो हम अनटाई कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन लेबर में है, टर्म है, तो बच्चा फुली मेच्योर है, तो उसमें बच्चे की डेथ चांसेस तो नहीं होती। अगर ये अनटाई होके क्लाट बनाए, ब्लड फ्लो को कम करे, तो उसमें हम डायरेक्ट फिर क्या करते हैं, बच्चे की जनाब फीटल हार्ट रेट का हम कंफर्म करते हैं कि बच्चा मतलब जिंदा है कि नहीं है, डिमाइस तो नहीं है, तो इसमें हम रीअश्योर कराते हैं। A 38-year-old preemie gravida suffering from cardiac disease present at 30-week gestation in labor with cephalic presentation. What is cephalic? Presenting part of the baby is head. The best option regarding mode of delivery will be 38-year-old preemie gravida suffering from cardiac disease present at 30-week gestation in labor with cephalic. ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, सिपेलिक प्रेजेंटेशन है लेकिन 30 वीक जेस्टेशन है, तो आंसर इज नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करते हैं एनवीडी, लेकिन बच्चा क्या होगा, प्रीमेच्योर होगा, और जब ये पैदा हो जाएगा तो उसको हम सर्फेक्टेंट और बीटा मेथासोन देंगे ताकि इसकी फीटल लंग क्या करे, मेच्योर कर सके। क्लियर है? फिर हाँ, फिर सी सेक्शन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है। नेक्स्ट, अ 20-year-old preemie gravida report to gynae OPD with history of 12 weeks pregnancy by dates. She has vaginal bleed and uterus is soft and enlarged for the date. Ultrasound pelvis uterus is enlarged with multiple echogenic shadow giving snowstorm. जब भी snowstorm आ जाए, it is hydrated form mole. Answer is B. Snowstorm appearance in the uterus is a diagnostic of molar pregnancy. और मोलर प्रेगनेंसी को हम हाइड्रेटेड फॉर्म मोल भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था ना, इसके 2 क्वेश्चन आए हैं। A 35-year-old female having undergone abdominal surgery 1 year ago has come with acute abdominal pain and vomiting. She has missed 2 cycles and dyspeptic. On examination, her pulse is 96, BP 100, temperature 100, her abdomen is tender. HB8 है, uterine examination 4 to 50 pastel. The most likely diagnosis is, हाँ जी, यस, इसका डी है, डी, बिल्कुल ये डी है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मतलब ये है कि उसको पता नहीं है, ठीक है, वो मिस कर चुकी है, उसको पता नहीं है, लेकिन इसको सिम्टम्स आ रहे हैं और लोअर एब्डोमिनल पेन भी है, ठीक है, और जब प्रेगनेंसी रप्चर्ड हो जाए तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है ना, तो आंसर इज डी। A 44-year-old obese lady after abdominal hysterectomy, removal of the uterus, developed severe wound infection. On 5th day, wound is open, exudate large amount of dead tissue, extended deep below the skin margin. The most likely infection that is caused by, that is C, hemolytic streptococcus. ठीक है, ये स्किन अल्सर्स कराते हैं। क्लियर है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डी। एक मिनट,
44 या स्किन, देखे इसमें अल्सर, स्किन अल्सर हीमोलाइटिक भी कराता है, स्किन अल्सर डुकराई भी कराता है। हाँ डर्टी नहीं, इसमें वूंड का जिक्र है, वूंड, और वूंड के ऊपर जब भी इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, सूडोमोनास है। बिल्कुल, ये हमने सर्जरी में किया था, वूंड इन्फेक्शन, और वो कभी कभार कहते हैं कि उस वूंड से ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रही है, ग्रीनिश, दैट विल बी सूडोमोनास। गुड, ठीक है। डी, a 2-year-old girl has been brought with excessive crying and bleeding gums for last 2 weeks. Clinical examination show irritable gulls and tender limb, skin bruise, periorbital hemorrhage. What is the most likely diagnosis? ये स्कर्वी है, D. That is of scurvy. Answer is D. Clear है? So this is 200 MCQs question. अब आप लोगों को मैं ये फ्लूइड का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि फ्लूइड के अंदर आप लोगों ने क्या चीज याद रखनी है। देखें, अगर हम, एक होता है फ्लूइड फॉर रिससिटेशन, एक होते फ्लूइड फॉर मैनेज, फ्लूइड फॉर मेंटेनेंस, फ्लूइड फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, इन दोनों में फर्क है। अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट लाया गया है, इमरजेंसी के अंदर जो फ्लूइड दी जाती है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फॉर रिससिटेशन। क्लियर है? वट एवर द फ्लूइड विच कैन गिव टू द पेशेंट इन इमरजेंसी दैट इज फ्लूइड फॉर रिससिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट लाया गया है बर्न में, पेशेंट लाया गया है हाइपोवोलेमिक शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट लाया गया है हीमोरेज में आरटीए के बाद, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पेशेंट लाया गया है सीवियर डायरिया में, सीवियर डायरिया। इसका मतलब ये सारे वो कंडीशन है जिसमें बंदे को प्रेजेंट किया जाता है इन इमरजेंसी। सो वट एवर द बेस्ट फ्लूइड दैट इज गिवन इन इमरजेंसी केसेस दैट इज कॉल्ड रिससिटेशन फ्लूइड। इसको हम फ्लूइड फॉर रिससिटेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट है, इसको पहले से कोई डिजीज है एंड दैट इज अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, इसको पहले से क्या है, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास। तो अगर पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसमें हम एनपीओ करते हैं। एनपीओ मीन नथिंग पर ओरल, बाहर से कुछ भी नहीं देते, तो उसको फिर हम कहाँ से देंगे, डेक्सट्रोज वगैरह आईवी फ्लूइड में देंगे। इसमें रिससिटेट नहीं करते, लेकिन फ्लूइड को क्या करते हैं, मेंटेन किया जाता है। या कोई बंदा है, इसकी बावल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका इंटेस्टाइन ब्लॉक है। तो जब इंटेस्टाइन ब्लॉक है, वो कुछ बाहर से नहीं खाएगा, तो उसको हम फ्लूइड में देंगे ताकि उसकी बॉडी का नॉर्मल फ्लूइड हम क्या कर सके, मेंटेन करें। तो इमरजेंसी के अंदर जो फ्लूइड दी जाती है इसको फ्लूइड फॉर रिससिटेशन कहते हैं। और जो क्रोनिक डिजीज के अंदर जिसमें हम बाहर से कुछ भी नहीं देते लेकिन पेशेंट को बाहर से फ्लूइड आईवी में देते हैं, इसको फ्लूइड फॉर मेंटेनेंस कहा जाता है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड याद रखें कि एनी इमरजेंसी में अगर पेशेंट आ जाए इमरजेंसी में, तो इसमें हम अगर एग्जाम में आ जाए इमरजेंसी है, इसमें जो नॉर्मल यूज होता है ना फ्लूइड दैट इज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, इसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी के साथ क्या होता है, एक जैसा होता है। मतलब इमरजेंसी में कोई भी बंदा आ जाए और आपको ये पता ना हो कि उसको क्या देना है, नॉर्मल सलाइन इज अ नॉन डेंजरस फ्लूइड। ये डेंजरस नहीं है क्योंकि ये बॉडी की ऑस्मोलरिटी को इफेक्ट नहीं कर सकता। इसको हम 0.9% सोल्यूशन भी कहते हैं, 0.9% सोल्यूशन। और इस फ्लूइड का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसमें जितना सोडियम होता है उतना क्लोराइड भी होता है, इसलिए ऑस्मोलरिटी अफेक्ट नहीं कर सकती। सो नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल, और जो इक्वल होंगे तो ऑस्मोलरिटी को अफेक्ट नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि डीकेए पेशेंट है, डीकेए, इसमें क्या देंगे आप लोगों के ख्याल में, बस व्हाट यू विल गिव डीकेए पेशेंट। हाँ जी, इसमें कीटोन बॉडीज बनी है और इसमें हम नॉर्मल सलाइन विद डेक्सट्रोज देते हैं, क्योंकि नॉर्मल सलाइन के साथ डेक्सट्रोज ऐड कर देते हैं, प्लस 5% डेक्सट्रोज भी देते हैं। ठीक है, डीकेए पेशेंट में। अगर एक और पेशेंट आए कि इसको एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, शाबाश, या बावल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको क्या देंगे, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस या बावल, हाँ, इसमें 5% डेक्सट्रोज देते हैं। अब ये बंदा एनपीओ पे है, नथिंग पर ओरल, ये बाहर से कुछ आएगा तो नहीं,
तो अगर ये हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया फिर क्या करोगे, तो इसमें हम 5% क्या देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं। तो इसमें 5% डेक्सट्रोज देते हैं। चलो जी, एक और पेशेंट आता है, इसमें सीवियर वोमिटिंग प्लस डायरिया की हिस्ट्री है। इसमें क्या देंगे, ये भी हमने पढ़ा था, सीवियर वोमिटिंग डायरिया, इसमें रिंगर लैक्टेट देते हैं। वेरी गुड, इसमें RL रिंगर लैक्टेट, क्योंकि रिंगर लैक्टेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये हम उन एरियाज के अंदर ज़्यादा देते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को दोबारा क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो सीवियर वोमिटिंग और डायरिया, इसमें जो सोल्यूशन देते हैं दैट इज रिंगर लैक्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी को हीमरेज है, इसमें क्या देंगे, हीमरेज मतलब RTA के बाद कोई बंदा है और उसको ज़्यादा ब्लीड हुआ है, सबसे पहले तो इसको नॉर्मल सलाइन देते हैं और इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सलाइन फॉलोड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसमें हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्लियर है जी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि DKA में नॉर्मल सलाइन विद डेक्सट्रोज देते हैं। क्लियर है। जो बंदा पेंक्रियाटाइटिस में हो या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, जो बाय से कुछ भी नहीं खाता, तो उसकी ग्लूकोज मेंटेन करना चाहिए, तो उसको 5% डेक्सट्रोज दिया जाता है। जो सीवियर वोमिटिंग डायरिया का केस हो, तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के शिकार हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट की रिप्लेसमेंट कौन करता है, नॉर्मल सलाइन, सॉरी हीमोरेज में नॉर्मल सलाइन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। और सीवियर वोमिटिंग डायरिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, तो इलेक्ट्रोलाइट को दोबारा रिप्लेस करने के लिए हम रिंगर लैक्टेट देते हैं। पूरे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आता है, ये कुछ 4-5 चीजें हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है और यही क्वेश्चन आते, इससे अलावा कोई भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन फ्रूटी ऑर्डर स्मेल जब भी आ जाए, फ्रूटी ऑर्डर, एसीटोन ब्रेथ आ जाए, वो DKA होगा, उसमें नॉर्मल सलाइन पहले देंगे, साथ में डेक्सट्रोज देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें डेक्सट्रोज क्यों देते हैं, वजह पता है क्या है, हाँ, एनीवन, व्हाई DKA पेशेंट रिसीव डेक्सट्रोज, डायबिटिक कीटोएसिडोज में ग्लूकोज ज्यादा होता है कि कम, डायबिटिक कीटो शुगर ज्यादा, तो फिर शुगर क्यों देते हैं, एक्सीलेंट आंसर इज इंसुलिन, इसको इंसुलिन भी देते हैं। इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए कहते हैं डेक्सट्रोज देते हैं, और इसकी जो फ्लूइड मेंटेनेंस है उसके लिए हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। बस यही है मेन पॉइंट इसके। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन है कि किस सोल्यूशन में क्लोराइड कितना है, सोडियम कितना है, कभी एग्जाम में नहीं आते। और जो कंपोजिशन है ये ड्रिप पे लिखा होता है, इसमें इतना क्लोराइड है। जिस तरह मुझे ये भी याद है कि नॉर्मल सलाइन में जो सोडियम का लेवल है ये 154 मिली मोल पर लीटर है, और क्लोराइड भी 154 मिली मोल पर लीटर है। तो 154 ये भी है, ये भी है, तो एट द एंड ऑस्मोलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम आइसोटोनिक फ्लूइड भी कहते हैं। तो नॉर्मल सलाइन इट इज कॉल्ड 0.9% सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक फ्लूइड। क्लियर है, बस ये याद रखिए, मोर देन एनफ है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब ये चेक करें ना यार, अब कैसा है, हाँ बस, हाँ, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ओके, इसने क्वेश्चन दिया है FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज अ फ्लूइड विच कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसके अंदर क्या होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो हम तब देते हैं जब किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो। तो इस तरह फॉर एग्जांपल वारफरीन की इमीडिएट रिवर्सल के लिए FFP देते हैं, प्लेटलेट का लेवल कम हो या क्लॉटिंग फैक्टर इशू जिसमें हमें ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करे, उसमें हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। जिस तरह हीमोफीलिया पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है, तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 इन्फ्यूजन ना मिले तो दूसरा अल्टरनेट क्या होता है, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है। ठीक है, ठीक।